Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting our chapter 4 of geography from standard 7, and the title of the lesson is air. So as we all know that our earth is surrounded by a huge blanket of air, and that is the layer of air is known as atmosphere. This we have already seen with 6th standard also, that there are four realms of the earth, there are four spheres of the earth: atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. So in this particular lesson we will get some information about this particular layer of atmosphere, as we all know, and also other informations related to air, means the composition of air, the composition of atmosphere, we can say, wind, air pressure, weather and climate. So there are a number of things which we are going to see with this lesson. You might have seen other videos also, but I request you to watch this video also till end, and also please keep reading your textbook. So before you start with this video, I request you to read your textbook once, means to read this particular lesson, entire lesson very carefully, and then just come back to this video. So our earth is surrounded by a huge blanket of air that is known as atmosphere, and all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. Ultimately, for survival of any of the living being, the atmosphere is necessary. Means if the atmosphere does not exist or if would not have existed, तो शायद ये पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे ग्रह के ऊपर शायद कोई भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं, यानी यहाँ पे लाइफ सर्वाइव ही नहीं हो पाती. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ. सो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलता है. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेस, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. द यूवी रेस, द अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन, जिन्हें ये वापस यानी कि रेडिएट कर देता है और अर्थ के लेवल तक उसे नहीं पहुंचने देता है. सो दैट इज़ ओनली डन बाय द एटमॉस्फेयर. So without this blanket of protection, means this is ultimately protecting us, and that's why it is said like blanket of protection, we would be baked alive. तो शायद हम बेक ही हो जाते, ज़िंदा ही जैसे भट्टी में होते वैसे हालत हो जाते. and by the heat of the sun during day and get frozen during night. So in the absence of the sun rays it would be very cold and definitely one would get frozen. So this atmosphere is ultimately, you can understand that layer protects us. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. So यही एक लेयर एटमॉस्फेयर ही है जो अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सके, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट सो नियर टू द सन एंड नॉट सो फार फ्रॉम द सन. सो पर्टिकुलर एक लेवल पे टेम्परेचर रेंज रहता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. So here also we will have some more information. As you know, the title we are having composition of the atmosphere. So we have already seen, हमें सबको पता ही है कि the highest percentage is occupied by nitrogen, that is 78%, and the second highest we have oxygen 21%. Other gases including carbon dioxide, argon, whatsoever it is, they all constitute in only this much of portion. So with the help of this pie chart you can understand much about the proportion of different gases in the atmosphere. Okay, so do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere, as you can see in this pie chart. Okay, so majority of the gas, you can understand these are two major gases. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. यानी ये जो पाई चार्ट में आप कलर के ऊपर से समझ ही सकते हैं बेहतर वे में, जो इतना छोटा सा हिस्सा है उसमें बाकी सभी गैसेस आ जाते हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, एंड द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, यानी द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस विच कंस्टिट्यूएंट द एटमॉस्फेयर, जो आपको फिगर 4.1 यहाँ बाजू में दिख ही रहा है. सो विद दैट हेल्प यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से गैसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. सो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर.
तो सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है। व्हेन वी इनहेल यानी जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट, यानी उसे बाहर भी निकाल देते हैं। बट plants need nitrogen for their survival. They cannot take नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन सीधा एयर से नहीं लेते हैं, पर उनके सर्वाइवल के लिए भी नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। सो जो बैक्टीरिया जो रूट्स में रहते हैं कई प्लांट्स के, बराबर है, या फिर सॉइल में मौजूद होते हैं, वो नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट। So ultimately nitrogen is used by the plants. Oxygen, which is the second most plentiful gas. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. So सांस लेने के वक्त हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। Green plants produce oxygen during photosynthesis, as you would have studied in science. So in that particular photosynthesis process, when the food is generated for the plant, so that particular plants release oxygen in the atmosphere. In this way oxygen content in the air remains constant. यानी कि अगर सभी इंसान सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और आपको पता ही है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती, पर क्योंकि प्लांट ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है यानी रिलीज़ करता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट एयर में कांस्टेंट रहता है, यानी ये बहुत कम नहीं होता है, गिरता नहीं है। पर अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ काटेंगे, इफ़ वी कट ट्रीज़ देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड, और अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा तेज़ी से, तो डेफिनेटली देयर वुड बी क्वेश्चन फॉर द लाइफ सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। सो ग्रीन हाउस प्लांट्स यूज़ carbon dioxide to make their food. So अपना फूड बनाने के लिए दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा रिलीज़ किया गया कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यही प्लांट्स वगैरह यूज़ करेंगे, और रिटर्न में आप जैसा समझ सकते हैं दे विल रिलीज़ दी ऑक्सीजन। सो द बैलेंस विल बी मेंटेन्ड. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants. Seems to be equal, यानी ये नज़दीकी है equal के, and which make a perfect balance. So however the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. So हम जिस तरह से ये सभी products यूज़ करते हैं और उससे जो भी gases रिलीज़ होते हैं, और ऐसे फ्यूल के यूजेस की वजह से दे ऐड बिलियंस टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, यानी बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा साल दर साल बढ़ती ही रहती है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो हम पढ़ने ही वाले हैं इन द सेम लेसन इट सेल्फ, एंड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, जैसा आप सबको पता ही है। नाउ बिफोर मी मूव फर्दर लेट अस गो बैक टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट वंस अगेन, बिकॉज वी नीड टू गो थ्रू दिस डू यू नो ऑल्सो विच इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। सो जैसा हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ जो भी हीट को रिसीव करता है उसे वापस रेडिएट कर देता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, वरना ये हीट ट्रैप हो जाती एंड दिस प्लैनेट वुड हैव बीन वेरी हॉट। सो इसी हीट को ये ट्रैप कर देता है, यानी कि ये जो मात्रा रेडिएट करने की है, ओके, वो कम हो जाती है, एंड इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस, और उसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। सो वो काफ़ी ठंडा होता रहने के लिए यहाँ नहीं लाइफ सर्वाइव कर पाती। हावेवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, अब जिस तरह ये फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स वगैरह की वजह से
जिस तरह से इसकी मात्रा बढ़ रही है, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इस तरह से अभी अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है और उसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. दिस राइज इन टेम्परेचर, तो ये जो राइज हो रहा है टेम्परेचर, साल दर साल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, दैट कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, और इसी वजह से बहुत हिस्से की बर्फ़ जो पिघलना शुरू हो जाती है, और उसी वजह से सी लेवल जो कि ऊपर उठ जाता है, द सी लेवल राइजेज, और उसी वजह से देयर इज़ अ फ्लड लाइक सिचुएशन in the coastal areas. So there may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. So if we think about the longer future, then the results will be with the drastic changes, यानी कि बहुत सारे plants और animals जो ख़त्म हो सकते हैं. ओके, सो ये सभी के रिजल्ट्स काफ़ी भयानक साबित हो सकते हैं. So on the next page, just beside this paragraph, you will find another box with title as "Do you know?" So when air is heated, it expands and becomes lighter, and because of being lighter, it goes up. Always the lighter air goes up and the heavier air sinks down. So because of the heat, first there is an expansion, it becomes lighter because of expansion, and as it becomes lighter, it travels up in the layer of atmosphere. So cold air जो कि denser होती है, काफ़ी dense है, density ज़्यादा है उसमें, और इसी वजह से ये heavy है, और heavy होने की वजह से it sinks down. जब hot air rise होता है, cold air surrounding area का जो होता है वो अपने आप sinks down, यानी कि वो जगह ले लेता है, यानी कि यहाँ से गर्म हवाएं जो कि ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, तो आसपास के सराउंडिंग में से कोल्ड एयर जो इसकी जगह ले लेती है, यानी एक सर्कुलेशन चलता ही रहता है. सो दैट एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल इन द गैप, एंड दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स place. Here you will find some pictures of newspaper cuttings like regarding the carbon dioxide level, global warming वगैरह वगैरह. And also you have a very good question here, is global warming a serious issue in today's world? You also can write your answers in comment. Next we have a title of structure of the atmosphere. So as you can find in the figure, there is a structure of atmosphere as it's given. So starting from troposphere as the first layer, we have the most outermost layer, that is exosphere. You would have studied the same in your 6th standard also. So now let us start with the structure of atmosphere. You can find the 5 different layers which constitute the atmosphere. The first among them is troposphere and the outermost is the exosphere. So we will be studying about all these sphere one by one. So first you will find troposphere. So this is the most important layer of the atmosphere. एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो दैट इज़ ऑफ 13 किलोमीटर, क्योंकि इफ़ दिस इज़ अर्थ, सो पोल्स के ऊपर इसका रेंज थोड़ा कम है और वापस इक्वेटर पे बढ़ता है, पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे बढ़ता है. सो द रेंज एट द इक्वेटर इज़ हायर देन द पोल्स एंड द एवरेज हाइट इज़ ऑफ 13 किलोमीटर्स. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, यानी कि जो सांस लेते हैं हम, दैट ऑक्सीजन लेवल इज़ फाउंड हियर. ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सभी इसी लेयर में होते हैं. स्ट्रेटोस्फियर विच इज़ अबव द ट्रोपोस्फियर, हियर यू कैन फाइंड विद द पिक्चर. सो ट्रोपोस्फियर के ऊपर द लेयर इज़ स्ट्रेटोस्फियर. यू मस्ट लर्न दिस शॉर्ट नोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The layers of atmosphere. So stratosphere is just above the troposphere and it extends up to a height of 50 kilometers. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena. There is nothing like weather activities taking place in this particular layer. So that makes the most suitable condition for flying aeroplanes. So fast jet planes also fly in this particular layer, because there is no weather phenomena, there are no clouds, and that's why it is very suitable for flying airplanes. One important feature of stratosphere is that
it contains the layer of ozone gas. So we have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. So this ozone layer particularly that protects us from the harmful effect of ultraviolet rays of sun. So हमें जो प्रोटेक्ट करने वाला ओजोन लेयर है वो ये स्ट्रेटोस्फियर में ही पाया जाता है. स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जैसा आप देखते हैं मेसोस्फियर, यहाँ फिगर में एक वर्ड आपको दिख रहा है दैट इज स्ट्रेटोपॉज, यानी कि द लेयर बिटवीन, ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर जो पाया जाता है उस हिस्से को स्ट्रेटोपॉज से जाना जाता है. जैसा आप यहाँ समझ सकते हैं देयर विल बी ट्रोपोपॉज. ओके, सो ऊपर मेसोस्फियर के बाद आएगा मेसोपॉज और मेसोपॉज से बाद आपको थर्मोस्फियर दिखेगा, यहाँ रहेगा थर्मोपॉज एज यू कैन अंडरस्टैंड. सो दैट इज़ द ट्रांजिशन लेयर, वहाँ से लेयर बदलना शुरू होता है. नेक्स्ट वी हैव द मेसोस्फियर. सो मेसोस्फियर इज़ द थर्ड लेयर वी कैन अंडरस्टैंड. जो पहला आपको ट्रोपोस्फियर दिख रहा है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे है मेसोस्फियर. सो इसका हाइट जो अप टू 80 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड होता है, यानी फैला हुआ है. मीटियोराइट्स जो आते हैं वो इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं, यानी आपको पता ही है मीटियर, मीटियोराइड एंड मीटियोराइट्स. सो ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए, आप ऑलरेडी पढ़े हुए ही है. सो देर आर मैनी मीटियर्स और सभी मीटियर मीटियोराइड नहीं बनते हैं. जो यहाँ अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिन्हें अर्थ पुल करता है, पर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो पूरी तरह से जल जाते हैं एंड दे आर नोन एज मीटियोराइट्स. द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फियर. इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली हाइट. सो धीरे 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 पर यू कैन अंडरस्टैंड टेम्परेचर यहाँ तेज़ी से बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग हाइट. सो आइनोस्फियर जो थर्मोस्फियर का एक हिस्सा है, आइनोस्फियर इज़ द पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ थर्मोस्फियर. और आइनोस्फियर जो है इट एक्सटेंड्स between 80 to 400 kilometers and this layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. यानी कि ये जो पर्टिकुलर आइनोस्फीयर है उसमें आयन्स पाए जाते हैं विच आर इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दोज आयन्स ओनली ये रेडियो ट्रांसमिशन अर्थ के ऊपर पॉसिबल बनता है. Exosphere, which is the uppermost layer of the atmosphere as you have seen in the figure, and this layer has a very thin air. क्योंकि आपने सुना ही है, आपको पता ही है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं the density of air decreases, क्योंकि लाइटर गैसेस ऊपर चले जाते हैं जैसा आपको पता है. तो यहाँ पे जो पाए जाएंगे दे वुड बी ऑलवेज लाइट गैसेस, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन वो फ्लोट करते हैं इस लेयर में और अल्टीमेटली वहाँ से फिर वो स्पेस में मिल जाते हैं. So after all these layers, I request you to go through your textbook. Please read all the layers carefully and we will be starting our part 2 from the title Weather and Climate. Till then, keep reading, keep learning. Thank you.